स्टूडेंट्स, आपके एमएससी फाइनल बॉटनी के जो सिलेबस है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का, उसमें फोटो बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम फोटो रिसेप्टर्स एंड फाइटोक्रोम्स की बात करने जा रहे हैं। फाइटोक्रोम्स विच आर द पिगमेंट्स, प्लांट पिगमेंट्स which can absorb the light. Maybe comes in the packet of photons. So these are to be received by the phytochromes and the electrons to be transformed from the one molecule to the another molecule. So in the today's discussion in the light regulation of plant development, what is going to be done that you can see here that two seedlings of Arabidopsis plant are here on the screen. One is grown under the dark conditions, and in the right side you can see the small one. It is the Arabidopsis seedling grown in the light condition. So you can see the hypocotyl length as well as the quaternary morphogenesis. So you can see that plant that is grown under the proper light conditions are healthy, and the proper chlorophyll development has been taken place. In the dark conditions, the hypocotyl may be longer, but the plant is not healthy. That means the cotyledonary leaves are not developed fully. The role of light in the life of plant, the screen is showing that all energy is to be derived from the sun. So sun is the main source, sunlight is the main source of the light. So in the presence of sunlight, the photosynthesis process to be started, by which the carbohydrate will be formed. So हम लाइट की जो है इसमें दो तरीके से आप देख पाए, चार तरीके से हमको इसको देखना होगा कि लाइट की क्वांटिटी क्या है। द सनलाइट जो भी लाइट आ रही है, रेडिएटेड जो लाइट है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कौन से स्पेक्ट्रम का लाइट है, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो सीधा आ रहा है, साइड में आ रहा है, या फिर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पीरियोडिसिटी को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सर्काडियन रिदम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से पीरियोडिसिटी मतलब वो उसका जो रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल है उस लाइट की इंटेंसिटी का, लाइट की प्रेजेंस का, और लाइट की डायरेक्शन का। तो ये सभी जो चारों चीज़ें हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रभावित करती हैं, अर्थात पादप में होने वाले विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक जो आकारिकीय परिवर्तन होते हैं, आकारिकीय जनन होते हैं, उनको प्रभावित करती है। सो द लाइट एंड प्लांट डेवलपमेंट, plants detects part of the light spectrum that are relevant for photosynthesis. There are three major plant photoreceptors are phytochromes, cryptochromes and phototropins. These are the actually pigments, and these photopigments acts as photoreceptors. Phytochromes receives red light, it can detect the red light, while the cryptochromes detect blue light and the phototropins detect blue light. So both cryptochromes and phototropins detect blue light while the phytochromes detect red light. And we know very well that the red light spectrum is at approximate 700 nanometer. So you can see here the light wavelengths detected by plant light receptors, phytochromes and cryptochromes. देखिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो हम जानते हैं कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि जो वर्टिकल जो है रीडिंग वो है परसेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है वो है 400 to 700 nanometer wavelength. So you can see here in the graph that phytochromes and the phototropins receive 400 to 500 nanometer light. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो है उसकी पीक आ रही है 500 नैनोमीटर, क्लोरोफिल बी की पीक आ रही है 450 के आसपास। फाइटोक्रोम जो है 700 नैनोमीटर का प्रकाश को डिटेक्ट करता है। क्लोरोफिल ए की पीक आ रही है यहाँ पर 650 नैनोमीटर के आसपास। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। So we are going to discuss about the phytochrome that detect red light.
Red light in plant development is to maximize photosynthesis. What are the role of phytochromes? Phytochromes promote seed germination. जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसको फाइटोक्रोम जो है प्रमोट करता है। कैसे? क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए भी लाइट की आवश्यकता होती है। देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। सो प्रॉपर लाइट जब आती है तो उस लाइट को रिसीव करने का काम, डिटेक्ट करने का काम फाइटोक्रोम के द्वारा किया जाता है। सो फाइटोक्रोम जो है सीड का जर्मिनेशन में सहायता प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रमोट डी इट्यूलेशन। इट्यूलेशन क्या है कि यदि किसी पादप जो जर्मिनेटेड जो सीडलिंग है यदि उसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसको हम इट्यूलेशन कहते हैं। तो क्लोरोफिल के निर्माण को रोकने वाले जो चीज़ें हैं उनको यह संदमित करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हम जो है डी इट्यूलेटेड सीडलिंग्स, जो हेल्दी सीडलिंग्स हैं, उनको प्राप्त करते हैं। सो इट ऑल्सो प्रमोट डी इट्यूलेशन। इट्यूलेशन जो है वो क्लोरोसिस के अकॉर्डिंग, क्लोरोसिस में बना हुआ क्लोरोफिल जो है वो अपघटित हो जाता है, जबकि इट्यूलेशन में क्लोरोफिल का निर्माण ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है उससे क्लोरोफिल का निर्माण जो है वो रुक जाता है, प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाता है। फाइटोक्रोम ऑल्सो कंट्रोल शेड अवॉइडेंस। इट ऑल्सो कंट्रोल सर्काडियन एंटरटेनमेंट। हमने सर्काडियन रिदम पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको भी ये कंट्रोल करता है। फ्लावरिंग को भी ये कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब है इन द मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू द फ्लावरिंग, these processes to be controlled and promoted by the phytochromes. फाइटोक्रोम्स की जो हिस्ट्री है डिस्कवरी की वो क्या है, देखिए इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके लिए लॉन्गर जो है लॉन्गर नाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और शॉर्ट दिन की ज़रूरत होती है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनके लिए नाइट की जो है वो कम ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है। सो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर्स ओनली व्हेन नाइट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग। देखिए पहले ये कहा जाता था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, तो इससे लगता है कि ऐसे पादप जिनको लंबे समय के लिए दिन की आवश्यकता या प्रकाश की आवश्यकता होती है वे लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। परंतु बाद के अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ कि दिन की जो या प्रकाश की लगातार जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंधकार की अवधि। तो इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट्स आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स, we can say them, or the short day plants are actually long night plants, we can say them. So short day plants flowers only when nights are sufficiently long, when long nights are interrupted by a short dose of white light, flowering is again delayed। यानी कि लंबी जो उसकी रातें हैं उस रात में अंधकार में यदि हमने बीच में उसको प्रकाश दे दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में ऊपर से लेकर तीसरे नंबर पर इंटरप्टेड नाइट है, यानी कि नाइट को इंटरप्ट कर दिया वाइट लाइट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में फ्लावरिंग नहीं होगा। द एक्टिव वेवलेंथ फॉर दिस लाइट रिस्पॉन्स वाज फाउंड टू बी रेड लाइट। तो इसको रिस्पॉन्स को जो इंटरप्शन हुआ यह कौन सा देखा गया, रेड लाइट की वजह से हुआ है। रेड लाइट कहाँ आई, जो हमने लाइट दी उसके अंदर। ठीक है, सो मोर ओवर द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ट्रीटमेंट कुड बी सप्रेस्ड बाय ट्रीटमेंट विद फार रेड लाइट। हाउएवर जब हम इस इंटरप्शन में फार रेड लाइट को डालते हैं तो ऐसे स्थिति में फिर से फ्लावरिंग रिज्यूम हो जाती है, तो फ्लावरिंग हो जाती है। सो इट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिसेप्टर प्रोटीन दैट इज एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट एंड इनहिबिटेड बाय फार रेड लाइट। तो यह प्रयोग यह साबित करता है कि कोई एक ऐसा रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि रेड लाइट में सक्रिय होता है और फार रेड लाइट में वह संदमित होता है। फाइटोक्रोम वाज आल्सो शोन टू कंट्रोल द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जैसे कि हम पहली स्लाइड में बात कर चुके हैं। सो रेड और फार रेड रिवर्सिबल फोटो कंट्रोल ऑफ लेट्यूस सीड जर्मिनेशन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में। पहली जो पेट्री प्लेट में
पेट्रीप्लेट है, इसमें बीज रखे हुए हैं जो कि डार्क में ग्रोन है। दूसरी में आप देख रहे हैं 5 मिनट उसको रेड लाइट दी गई, और तीसरी में आप देख रहे हैं उसको 5 मिनट रेड लाइट दी गई, फिर 5 मिनट फार रेड लाइट दी गई। तो जर्मिनेशन कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है? 5 मिनट रेड लाइट में। सो रेड लाइट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, एंड फार रेड लाइट सप्रेसेस द रेड लाइट इफेक्ट। भाई रेड लाइट जो है वह तो क्या कर रही है? सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रही है, जबकि फार रेड लाइट उस रेड लाइट की इफ़ेक्ट को रोक रही है। यानी कि जो रेड लाइट सीड जर्मिनेट कर रहा है, फार रेड लाइट उसके जर्मिनेशन को रोक रहा है। तो आप यहाँ पर तीनों का इफेक्ट तीनों स्क्रीन पर तीनों पेट्रीप्लेट में देख सकते हैं। So this is all about the introduction to phytochrome and history of phytochrome discovery. In the next video, we will discuss about the properties of receptor, phytochrome structure and function.